Assalamu alaikum viewers, welcome back to the next part of the geography part 2. In the first part, part 1 of the topic, we discussed the physiographical divisions of India. In that topic, we discussed the two main core points, that is Himalayan mountains, another we discussed the northern plains. That was briefly discussed and we totally completed that part. Here we are going to discuss the third point of the physiographical divisions of India. The third point of the physiographical divisions of India comes the peninsular plateaus. Okay, I have again drawn the rough sketch of the Indian map, although it is not complete, but the northern part up to the eastern side and the Gujarat area up to the south, Indira Point, I sketched this. Now the plateaus, what type of plateaus are found in India? Before going to that topic, first we see what the plateau is. प्लेटो एक टेबल लैंड सॉरी एक लैंड होता है जो मेन लैंड से थोड़ा अपहिल लाइक होता है स्ट्रक्चर इसका. It is actually in a shape of a table, but it is not like a mountain. The mountains are high, very high in altitude, but they have peaks. These plateaus don't have peaks at the top, they are table-like structured. Okay, so these plateaus are found in Indian peninsular part. Peninsular part is that part of India which is covered by three sides by water. Okay, from the eastern side is the Bay of Bengal, in the western side is Arabian Sea, and the southern part of the mainland of India is surrounded by the Indian Ocean. So peninsular part means that is surrounded by three sides by water: Indian Ocean, Arabian Sea, and Bay of Bengal. Now let us discuss it very briefly. In this peninsular part, the plateaus that are found are maximum made of black soil. This black soil is actually in igneous in origin, because जो volcanic eruptions long before जब गोंडवाना land था उस वक्त जो volcans erupt हो गए, दो igneous rocks emerge हो गई वहाँ से, magma, ash, बाकी सारा. Later on जो process, gradual process थी millions of years तक, तो उसकी वजह से ये जो इसका ब्लैक सॉइल का टेक्सचर जो था ये अभी भी वहाँ पे मौजूद है और अभी भी वहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, विच इज़ रिच इन टर्म्स ऑफ कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया. So that is why the finest cotton is found in mainland India, which has been exported to many other countries. Okay, it has old crystalline and metamorphic texture also in the soil. We found the metamorphic texture as well as crystalline, igneous crystalline. Okay, now why is so? Because we know, we already discussed it is the oldest landmass found in India. That was already discussed by me, the Gondwana land. ठीक है. Now it has two basic divisions. One division we are going to discuss one by one. The two divisions of peninsular plateaus. Number one is Central Highlands, another is Deccan Plateau. The Central Highlands occupy the space of this part of India, and Deccan Plateaus further towards the down, okay, up to this area. Now these Central Highlands and Deccan Plateaus, we are going to discuss them one by one. The first we will discuss the Central Highlands. Central Highlands जो है ये नॉर्दर्न साइड से है नर्मदा रिवर के. ठीक है, जो नर्मदा रिवर बहती है इसके नॉर्दर्न साइड में सेंट्रल हाईलैंड्स पाए जाते हैं. ठीक है, इसमें जो एरिया है वहाँ पे विंध्या रेंज पाई जाती है. ठीक है, ये जो विंध्या रेंज है इसको सराउंड करती है सतपुत्रा हिल्स या सतपुत्रा रेंज. ओके, ये जो रेंज है सतपुत्रा रेंज, इट सराउंड्स इट अप टू साउदर्न पार्ट.
So these are two types of ranges that are found in the Central Highlands. One is Vindhya range, another is Satputra range, and Satputra surrounds it up to the southern part of the Narmada area. Okay. अब इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें ये मैक्सिमम ब्लैक सॉइल से ही ज़्यादा वहाँ पे घिरा हुआ है, बट कुछ एरियाज़ में जो राजस्थान के साइड से है वहाँ पे सैंडी रॉक्स का ज़्यादा मैक्सिमम वो लैंड पाया जाता है, बट इट एक्सटेंड्स फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया। यहाँ पे अब किस तरीके के जो फिज़िकल फीचर्स वहाँ पे इस सेंट्रल हाईलैंड में पाए जाते हैं, जिसमें जो रिवर्स का फ्लो होता है वो सीजनल होता है कि पेरिनियल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ के जो रिवर्स है वो सीजनल नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर्स नहीं पाए जाते हैं, वो पेरिनियल होते हैं, रेन फेड होते हैं। जब भी सीजन्स में मानसून के ज़रिए वहाँ पे रेन आती है तभी जाके इन दरियाओं में पानी आता है। तो चार जो दरिया है जिनका हम नाम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। वन इज़ चंबल, अनदर इज़ बेटवा, थर्ड इज़ सिंध एंड केन। तो दीज रिवर्स are Chambal, Betwa, Ken and Sindh. These are four rivers that are flowing through the mainland central part of the highlands up to the Narmada river, then they flow into the Arabian Sea. So they are the source of livelihood, they are the source of irrigation in the mainland central area of the peninsular India. सो ईस्ट वार्ड साइड से हम जब देखेंगे, ये वाला जो साइड है इंडिया का, ये ईस्ट वार्ड साइड है, इसमें से हम देखेंगे वहाँ पे कौन एरिया में कैसी सॉइल का टेक्सचर है, कैसी लैंड पाई जाती है। डेक्कन प्लेट्यूज जो है वो इस वाले साइड में ज़्यादा पाई जाती है, बट इस वाले एरिया को इन्होंने नाम बुंदेलखंड दिया है, क्योंकि ये जो बुंदेलखंड वाला एरिया है ये छोटा नागपुर के आसपास पड़ता है, जहाँ से एक दामोदर रिवर फ्लो होता है। अब ये इसको स्प्लिट करता है दो हिस्सों में, जहाँ से फिर डक्कन एरिया का ट्रायंगुलर पार्ट स्टार्ट होता है। तो ये वाला जो है ये एरिया, ये डक्कन एरिया का पार्ट है। तो ये दूसरा डिवीजन है किसका, पेनिनसुलर प्लेट्यूज का, ठीक है। तो ये जो डेक्कन प्लेट्यूज है इसमें जो लैंड मास है वो सेम है, बट ये टुवर्ड्स द साउथ of Narmada. It was the central highlands were to the north of Narmada and the Deccan Plateau is to the south of Narmada. Now we were discussing the Deccan Plateaus. जो Deccan Plateaus है वो दूसरा डिवीजन है किसका, इसका Peninsular Plateaus का। अब इनकी जो altitude होती है किसकी, Deccan Plateaus की, वो हायर देन दैट ऑफ द सेंट्रल मेनलैंड हाईलैंड होती है प्लेट्यूज़ की। दैट इज़ जो डेक्कन एरिया का जो एरिया है उसमें जो हाइट जो पाते हैं मेनलैंड्स की, वो इन प्लेट्यूज़ से ज़्यादा हाइट में होते हैं रादर देन द सेंट्रल हाईलैंड्स। तो दैट मीन्स इनका जो ऑल्टीट्यूड है वो हायर देन दैट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स है। नंबर वन पॉइंट है। नंबर दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि ये जो ऑल्टीट्यूड वाली रेंज जो डेक्कन प्लेट्यूज़ की आती है, इसमें जो एरियाज़ वहाँ से गुज़रते हैं वो बुंदेलखंड का वाला जो एरिया साउदर्न पार्ट ऑफ नर्मदा है वहाँ से गुज़रता है, ठीक है। अब ये ब्लैक सॉइल रिच फर्टाइल होती है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि यहाँ से हम कॉटन जो प्रोडक्टिविटी वो ज़्यादा हासिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, जो डेक्कन प्लेट्यूज़ है वो उसमें एक फीचर होता है, ये जो डेक्कन प्लेट्यूज़ है ये मैक्सिमम टाइम्स रहा है एक सेंट्रल मेनलैंड हाईलैंड का इन टच टुवर्ड्स द साउथ ऑफ इंडिया। तो इसकी वजह से जो एक्सेस है इनकी एक्सेस अप टू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स तक पहुंच जाती है। तो ये जो ईस्टर्न घाट्स जो बे ऑफ बंगाल साइड में है और जो वेस्टर्न घाट्स जो है अरेबियन सी के साइड में है, अब हम उनको डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। अब ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे कुछ हिल्स पाए जाते हैं जिनको वेस्टर्न घाट्स कहते हैं। तो ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये हायर देन होते हैं। एक एक करके मैं बीच में लाइन डालूंगा ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स की। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं वो हायर होते हैं, ठीक है, ऑल्टीट्यूड में। तो कितना ऑल्टीट्यूड इसका एक्सटेंड होता है, जो इसकी एवरेज एलिवेशन है वो 900 से 1600 मीटर्स का ऑल्टीट्यूड होता है। और ईस्टर्न घाट्स में क्या होता है
ओके इसमें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये हायर देन होते हैं वेस्टर्न घाट्स के, इनका ऑल्टीट्यूड एवरेज जो होता है जिसको हम एवरेज हाइट कहते हैं वो है 600 मीटर। तो अब हम देखेंगे ये कहाँ से कहाँ तक है। ये महानंदी से शुरू होते हैं, नंदी से नीलगिरी हिल्स तक। नीलगिरी हिल्स जो है इनका एक्सटेंड है, महानदी से स्टार्ट होते हैं ईस्टर्न घाट्स और नीलगिरी हिल्स पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। अब इनमें इरेगुलर ये होती है, हाँ इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, ये रेगुलर नहीं होती है। ये ईस्टर्न घाट्स इनको बाइसेक्ट करती है, हाँ इनके अंदर बाइसेक्शन होता है, ये बाइसेक्टेड बाय द रिवर्स होती है। जो रिवर्स होते हैं वहाँ पे इनको बाइसेक्ट करते हैं, बहुत सारे रिवर्स यहाँ से गुजरते हैं जिनकी वजह से इनका नेचर जो है वो इरेगुलर होता है, ठीक है। तो ये हो गया इनका थोड़ा सा जो हमने ईस्टर्न घाट्स का डिस्कस किया। नेक्स्ट तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट में कि वेस्टर्न घाट्स जो है इसमें रेनफॉल कैसा होता है, ठीक है। वो रेनफॉल यहाँ पे हेवी होता है, ठीक है, रादर देन ईस्टर्न घाट्स जो रेनफॉल यहाँ पे हम यहाँ पे रिसीव करते हैं, ठीक है। ये लोअर देन दैट ऑफ वेस्टर्न घाट्स है। वजह उसकी ये है, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स होती है उसमें दो साइड्स होती है, एक होता है विंडवार्ड साइड और लीवार्ड साइड। जो विंडवार्ड साइड होता है उसमें ज़्यादा रेन मॉइस्चर लेके आती है, विंड्स वो मॉइस्ट विंड्स होती है, वो रेन ज़्यादा लेके आती हैं, तो उसकी वजह से हम ये यहाँ पे रिसीव रेनफॉल ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट लोकल नेम्स होते अपने अपने एरियाज़ में इस वेस्टर्न घाट्स को दिए गए हैं अपने एरियाज़ में, तो हमें वो यहाँ पे डिस्कस नहीं, मगर वहाँ पे जितना हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे, यानी जब भी हम यहाँ से ऑल्टीट्यूड जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यूज़ है, जब हम साउथ की तरफ जाएंगे इनके ऑल्टीट्यूड में हाइट पाई जाती है। तो दैट मीन्स व्हेन वी मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ the height of the western ghats increase, ठीक है। when we move and the height you will observe automatically the height will increase while we move from north to south, ओके। वहाँ पे बहुत सारी पीक्स पाई जाती है, उनमें से कुछ मशहूर पीक्स है अनाईमुंडी, और तो वो उनकी हाइट है 2695 मीटर्स होती है, एक है अनाईमुडी की इसकी हाइट है, ठीक है। तो दूसरा है कोड़ा बेटा, इसका मैंने नाम नहीं लिखा, अनाईमुडी, इसका 2635 मीटर्स है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये दो पीक्स मशहूर पीक्स है जो वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। डिस्कस करेंगे अब ईस्टर्न पार्ट्स में कौन कौन सी पीक्स पाई जाती है। ऑल्दो वहाँ पीक्स नहीं पाई जाती है क्योंकि उनकी एलिवेशन या एवरेज हाइट जो है वो बहुत कम पाई जाती है। उसमें एक एरिया है जो मशहूर है जिसको ऊटी कहते हैं, उसका एक्चुअल नेम जो हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे उसका नाम ऊटी एक्चुअली वाड़ागा मंडलम है, ठीक है। तो ये एक है, दूसरा है इसके साथ ही जो एक डेस्टिनेशन है कोडाकलम, तो ये दो एरियाज़ हैं जो वहाँ पे मशहूर हैं। ऑल्दो ये उतनी उनकी हाइट नहीं है जितनी यहाँ पे हमने अनाईमुंडी की थी या दूसरा जो हमने यहाँ पे किया था, बट फिर भी इनका एक ज्योग्राफिकल एक लोकेशन उसके हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंस है अपने एरिया में, ठीक है। तो ये थी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स जिसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की, जो दो डिवीजन्स थे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा इसमें वो फोर्थ टॉपिक होगा कोस्टल प्लेन्स, ये हमारा फोर्थ टॉपिक है। कोस्टल प्लेन्स और कोस्टल लाइंस, हाँ। अब हम कोस्टल लाइंस या कोस्टल प्लेन्स किन्हें कहेंगे, तो ऑलरेडी हमने पेनिनसुलर पार्ट डिस्कस किया, अब हम फिर से यहाँ पे पेनिनसुलर को थोड़ा ड्रॉ करेंगे, इंडिया का पूरा इंडिया नहीं बनाएंगे। ये वाला जो एरिया है जो समंदर के नज़दीक जो एरियाज़ होते हैं इनको कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, क्योंकि ये जो कोस्टल प्लेन्स है या कोस्टल लाइन जो है ये इंडिया की मेनलैंड की बहुत इम्पोर्टेंस रखती है एज़ पर द
ट्रेड एंड कॉमर्स इज कंसर्न, बिकॉज जो भी पोर्ट एक्टिविटीज़ होती है वो इन्हीं कोस्टल एरियाज़ में होती है। बट उसके अलावा क्या क्या चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे वो डिस्कस एक एक करके करेंगे, क्योंकि इट इज़ फैचड अप टू द स्ट्रेच फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स टूवर्ड्स सॉरी इन द वेस्ट एंड इन द ईस्ट यू से। यहाँ पे दो सीज़ जो हम डिस्कस करेंगे जिनके साथ ये कोस्टल प्लेन्स लाई करता है, आपको ऑलरेडी मैंने बताया अभी पहले वाले टॉपिक में कि यहाँ से अरबियन सी है और यहाँ से बे ऑफ बंगाल है और नीचे वाले साइड में इंडियन ओशन है। ओके, अब इस कोस्टल प्लेन्स के हम सेक्शंस को एक एक करके पढ़ेंगे कैसे है। ये जो सेक्शंस है 3 सेक्शंस होते हैं कोस्टल प्लेन्स के, ठीक है। जो नॉर्दर्न पार्ट का सेक्शन होता है उसको कोंकण बोलते हैं, वो मुंबई और गोवा वाला एरिया है। ये वाला एरिया जो नॉर्दर्न वाला हिस्सा है, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। ये तो नॉर्दर्न वाला पार्ट है इस कोस्टल प्लेन्स का, ऑल्दो ये लाइन मैंने यहाँ तक स्ट्रेच करी जबकि हम सिर्फ इसका डिस्कस कर रहे हैं कोस्टल प्लेन्स का, तो इसको हम मुंबई और महाराष्ट्र वाला एरिया इसको कोंकण बोलते हैं। अब दूसरा, अब हम सेंट्रल स्ट्रेच देखेंगे। सेंट्रल और लास्ट में आता है साउथ, इसको कन्नड़ बोलते हैं और इसको मलाबार बोलते हैं, मलाबार कोस्ट। ओके, तो ये 3 इसके डिविजन्स अब हम एक एक करके, सॉरी डिविजन्स नहीं, सेक्शंस जो कोस्टल प्लेन्स के हैं ना, वी डिस्कस अबाउट दीज 3 कि ये कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही आपको बताया नॉर्दर्न पार्ट में जो कोंकण है इट स्ट्रेचेस फ्रॉम दिस महाराष्ट्र गोवा वाला पार्ट, एंड नाउ कम्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेनलैंड कोस्टल प्लेन्स इज called the Kannad. It stretches up to the Karnataka wala area, up to the Kerala. Last is Malabar, that is purely up to the southernmost point of the Indian mainland. तो इसको मलाबार कहते हैं। अब हम बात करेंगे जो इस वाले साइड से, ईस्टर्न वाले साइड से जो कोस्टल प्लेन्स हैं उनको कितने सेक्शंस हैं और उनको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। इसमें आ गया कोंकण, कन्नड़ और आगे इसमें मलाबार। इसमें सिर्फ 2 आएंगे, साउदर्न और नॉर्दर्न, ठीक। तो नॉर्दर्न वाले पार्ट को सिरकार कहते हैं और इसको कोरोमंडल कहते हैं, ठीक है। ये 2 इसके सेक्शंस है, ठीक है। अब इस नॉर्दर्न पार्ट में सिरकार और कोरोमंडल आते हैं, ठीक। इस वाले एरियाज़ में जब हम देखेंगे ये फ्रॉम वेस्ट बंगाल से गुज़रते गुज़रते उड़ीसा से आते आते नीचे की तरफ, फिर यहाँ से पुडुचेरी, तमिलनाडु, अप टू द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये यहाँ तक हमने डिस्कस किया कोस्टल प्लेन्स। द लास्ट टॉपिक इज़ आइलैंड्स। द आइलैंड्स इज़ द 6th फिजियोग्राफिकल डिवीजन of India. Last, what is an island? Island is that part of land which is separated from the mainland but is surrounded by water on all its sides. Like I will draw a figure here. The figure shows that this is a small patch of land but it is surrounded from all its sides by water. That part of land is called island. So simply we can say जो island होता है इसको चारों तरफ से पानी होता है। तो इस वाले आइलैंड्स में, इंडिया के जो आइलैंड्स हैं उनमें हमने 2 टाइप्स के आइलैंड्स पढ़ने हैं, ठीक है। अब इंडिया में जो आइलैंड्स हैं वो भी 2 तरफों से पाए जाते हैं। ईस्टर्न वाले साइड से भी आइलैंड्स पाए जाते हैं और वेस्टर्न वाले साइड से भी आइलैंड्स पाए जाते हैं। जो वेस्टर्न साइड से आइलैंड्स हैं उनको लक्षद्वीप कहते हैं और जो ईस्टर्न वाले साइड से हैं उनको अंडमान एंड निकोबार कहते हैं। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये है क्या और ये कैसे, किस तरह लोकेट कहाँ पे है, ये सारा डिस्कस करेंगे, ठीक। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा फिर से स्केच देंगे, एक थोड़ा सा फिगर बनाएंगे। ये वाला जो साइड है यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़े से डॉट्स डाले। अब ये डॉट्स जो है यही एक्चुअली मैं फिगराइज करना चाहता हूँ, दीज आर आइलैंड्स।
और ये जो आइलैंड्स हैं ये ईस्टर्न साइड ऑफ मेनलैंड पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया है, इन्हीं को अंडमान एंड निकोबार कहते हैं। ठीक है, ये ईस्ट वाला साइड है। अब ये वाला साइड जो है ये वेस्टर्न पार्ट है। अब यहाँ पे थोड़े से डॉट्स मैंने आइलैंड्स को रिप्रेजेंट करना है, इनको लक्षद्वीप कहते हैं। यस, नाउ अंडमान एंड निकोबार lie in Bay of Bengal and Lakshadweep lies in the Arabian Sea. Now both are clear now. These islands are further divided into two. The northern part of the islands, although they are much numerous in number than that of the Lakshadweep. So the northern side of islands in the Bay of Bengal Sea are called Andamans, and in the southern part of the Bay of Bengal the island group of islands is called Nicobar Islands. So these are two types of groups. One is Andaman from the upper northern side of the Bay of Bengal, to the southern is Nicobar Islands. Now coming towards the west in the Arabian Sea, we see only one group, small amount of land, that is called Lakshadweep, that has 32 square kilometer area. नाउ अब हम इनको एक एक करके देखेंगे इनमें क्या क्या फ़ीचर्स है। अंडमान में क्या फ़ीचर्स है, निकोबार में क्या फ़ीचर्स है, वहाँ पे कैसी लैंड पाई जाती है, फॉरेस्ट कवर कैसा है। अगर वो नहीं डिस्कस करेंगे फिर इनकी इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया के फिजिकल डिविजन्स में। ठीक, जो अंडमान एंड निकोबार है ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट ना, वहाँ पे इक्वेटोरियल काइंड ऑफ क्लाइमेट वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ये इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है, इक्वेटर पे मैक्सिमम जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक, अब ये इसकी जो आइलैंड्स की जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो निकोबार की है वो बहुत रिच है, दे आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। So the richness of the natural resources may include all the forest cover and as well as we see there are a lot of reserves of minerals. Apart from that, it has a strategical importance because the port activities also take place in the Nicobar Islands, अंडमान एंड निकोबार। जो पोर्ट एक्टिविटीज़ होती है वो किसके लिए होती है? पोर्ट एक्टिविटीज़ जो वॉयेज होती है शिप्स की, कैरेजेस जो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट के लिए होती है, वो इसी मेनलैंड इंडिया से गुजरते गुजरते अंडमान निकोबार से गुजरते फिर बाकी एरियाज़ ऑफ वर्ल्ड, जैसे कि यहाँ से इसको आएंगे थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वो कंट्रीज़ अलाई करते ईस्टर्न साइड से। ठीक, अब हम वेस्टर्न साइड की बात करेंगे लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप जो है उसकी 3 एंशंट नेम्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको लकाद्वीप भी बोलते थे, इसका जो पुराना नाम है, पुराने नामों में से एक नाम है लकाद्वीप, मिनिकॉयर है दूसरा, और एमनड्यू। ये 3 नाम है, लकाद्वीप, मिनिकॉयर और अमनदीव। अब ये इसके ओल्डेस्ट नेम से नया नाम जो है लक्षद्वीप है, और ये यूनियन टेरिटरी, ये भी यूनियन टेरिटरी में आती है, और अंडमान निकोबार के आइलैंड की ग्रुप जो भी यूनियन टेरिटरीज में आती है। अब इनका जो हेडक्वार्टर है वो कवाराती है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब इसमें कौन सी खसूसियत पाई जाती है? वहाँ पे लोग भी रहते हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेडक्वार्टर है वो कवाराती है, और वहाँ की जो स्पेशल फीचर है वो है वहाँ पे कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। कोरल रीफ्स के अलावा एक बर्ड सेंचुरी बनाई गई है जो वहाँ पे इस्टेब्लिश की हुई है बर्ड्स को कंजर्व करने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। दिस concludes our second part of the geography. Apart from that, we will revise the whole lesson. We discussed the physical features of India. First physical feature or the physiographical feature we discussed, that was the Himalayan mountains. Second was the northern plains. Third was the peninsular plateaus. Fourth was the coastal plains. Fifth was the islands, and even though we discussed the Deccan Plateaus in the Western Ghats and Eastern Ghats. That was all about this topic. I hope that you have listened and focused in the topic very interestingly. So
Best of luck, have a nice day, see you in the next topic. Allah Hafiz, Assalamu alaikum.